Assalamu alaikum everyone, welcome to the channel. This video will be a quick review of almost all concepts covered in O levels for this topic transformation, right? So, in which you will be able to reflect, rotate, translate, and enlarge any given object. You will also be able to find out the line of reflection, angle of rotation, center of rotation, transformation matrix, translation matrix, how to find the center of enlargement, and how to find the scale factor of enlargement. You will also learn in this video how to perform transformation through matrices and how you can find out a 2 by 2 matrix when the transformation type is given. And you will also able to find the inverse transformation and perform the combined transformation. Let me give you the review. Reflection, rotation, and this video will cover all notes that are necessary, that you need to memorize, that you need to understand to perform good in this topic, right? You will be covering transformation through matrices. You will find out all the types of matrices here, and combining transformation, inverse transformation, and everything, right? This is we are going to discuss, right? This is a complete view of the presentation, right? So to start with, हमारे पास जो transformation है, it has two types. One is isometric, the other is non-isometric. Isometric transformation का मतलब ये होता है कि the measurement remains same, the shape and the size remain same. Iso means same, metric means measurement. So the transformation in which the object and the image have same shape and size is considered as isometric transformation. You have only one non-isometric transformation, which is enlargement, right? In which the image is geometrically similar to the object, right? There were some other transformation in the syllabus some years back, which is shear, and stretch, but this is no longer the part of the syllabus O levels. So we are not going to discuss this, right? So let's erase them. So अभी तो हमारे पास ये चार टाइप्स हैं. To start with the easiest, reflection एक isometric transformation है. हर टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की एक अपनी वोकैब होती है. उस वोकैब को जहन में रखना ज़रूरी है. ऑब्जेक्ट जिसको हम रिफ्लेक्ट करेंगे, राइट? लेट मी यूज़ कलर, राइट? ऑब्जेक्ट जिसको हम रिफ्लेक्ट करेंगे, राइट? इमेज जो रिफ्लेक्ट होने के बाद नई पोजीशन पे चला जाता है पॉइंट. एक चीज़ होती है, इसको आप इन्वेरिएंट लाइन कहते हैं, इसको आप लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं, मिरर लाइन भी कह सकते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री भी कह सकते हैं. रिफ्लेक्शन वैसे एक बड़ा कॉमन आइडिया है. आपने रिफ्लेक्शन अपनी मिरर में भी देखी होगी. अभी कैसे होती है फ़िज़िक्स के हिसाब से, तो हम इसको स्टडी करेंगे. इसमें एक कॉन्सेप्ट इन्वेरिएंट पॉइंट का भी होता है. एक तो ये कि आइसोमेट्रिक है, दैट यू ऑलरेडी नो. You should be able to understand what is perpendicular bisector, and you should be able to draw it. आपको draw करना भी आना चाहिए perpendicular bisector, and how to perform successive transformation. ये कुछ important बातें थी. हम करते कैसे हैं? Coming to the point, for example, आप लोगों के सामने अगर मैं पहला केस ये रखूं कि for example you have a point, an object B, right? This is object B, and you are going to object B is 6,2. I'm going to write it here. Object B is 6,2, and you are going to reflect in y-axis. अब y-axis कहा जाए या लाइन बताई जाए कि x is equals to 0, इन दोनों बातों का मतलब सेम है. मतलब आपको लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन अगर बताई जाए कि y-axis है और एक पॉइंट बताया जाए 6,2 कि आपने इसको रिफ्लेक्ट करना है इस लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से, तो आप कैसे इमेज निकालेंगे? तरीका बहुत सिंपल है. आप ये चेक करेंगे कि ये पॉइंट भी इस दफ़ा लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस है. वाई एक्सिस इज़ द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन.
और you may call it x is equals to 0. वेल अब आप ये देखते हो कि ये पॉइंट परपेंडिकुलरली अपनी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से कितना दूर है. यू कैन नोटिस दिस कि ये 6 यूनिट्स दूर है. तो बात ये है कि अगर ये 6 यूनिट्स दूर है तो ये अपनी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा इतनी ही दूर, यानी कि ये 6 यूनिट्स ही दूर चला जाएगा परपेंडिकुलरली. एंड दिस इज़ अ पॉइंट बी डैश या बी प्राइम which is minus 6,2, minus 6,2. This is the image. This is the object. This is the object. This point is the object. And this point B dash, B prime is the image. Right. So very easy. जो चीज़ 6 यूनिट्स राइट पे थी अपनी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से, वो परपेंडिकुलरली उतनी ही फासले पे उसकी ऑपोजिट साइड पे चली गई. तो इसका पॉइंट -6,2 हो गया. राइट. तो इमेज के कोऑर्डिनेट्स हो गए -6,2. राइट. इन अ सेम वे अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पॉइंट रिफ्लेक्ट हुआ है, अगर मैं पॉइंट ए को रिफ्लेक्ट करना चाहूँ तो ये भी 6 यूनिट्स दूर है, ये 6 यूनिट्स दूर दूसरी तरफ आ जाएगा, यानी कि दिस पॉइंट वुड बी -6,6. दिस इज ए प्राइम -6,6. राइट. सो अगर मैं कहूँ कि ये पूरी लाइन ए बी रिफ्लेक्ट हुई है, सो यस वी कैन ड्रॉ दिस लाइन कि ये ए बी रिफ्लेक्ट हो गई. लेट मी डू इट प्रॉपरली. ये यहाँ आ गई. इसी तरह से यू कैन फिगर आउट के सी 10 यूनिट्स दूर है. सी इज़ अ पॉइंट जो कि 10 यूनिट्स दूर है अपनी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से. तो ये यहाँ आ जाएगा -10,2. सी प्राइम इज़ गोइंग टू बी -10,2. सही है. सो इफ़ आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस आउट द कंप्लीट ट्रायंगल, तो ये आपका इमेज डेवलप हो गया. राइट. दिस इज़ द इमेज ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. सो हम इस टॉपिक के हिसाब से कहते हैं कि दिस ए डैश बी डैश सी डैश और ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम इज़ मैप्ड बाय द रिफ्लेक्शन onto ABC, or ABC map onto A prime, B prime, C prime. Right. So anyway, तब आप ये देखो इसी तरह से अगर ये आपके पास लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन इस पॉइंट बी के लिए, पॉइंट बी जो कि 6,2 है, लेट्स से अगर आपके लिए लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज कर दी जाए, अगर आपको एक्स एक्सिस एज अ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन दी जाए तो एक्स एक्सिस कहा जाए या वाई इज इक्वल्स टू 0 कहा जाए, द मीनिंग इज सेम. राइट. तो यू कैन नोटिस दिस कि ये इस वक्त, लेट मी चेंज द कलर, लेट्स से कि इस दफ़ा लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ये है या मिरर लाइन ये है या लाइन ऑफ सिमेट्री ये है. तो आप ये देखोगे कि ये इससे कितने यूनिट दूर है, ये इससे 2 यूनिट दूर है. राइट. ये 2 यूनिट दूर है, तो ये 2 यूनिट दूसरी तरफ चला जाएगा, इसके ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा. सो दिस टाइम the coordinates of the image are 6 minus 2. Right. So let me write it here कि अगर 6,2 है तो b prime is 6 minus 2. Right. So for C prime 10 minus 2. Right. And if I am going to find the image of this complete line BC, this is going to be this. Right. In the same way अगर मैं A का इमेज निकालना चाहूँ by taking x axis as invariant line, so तो ये यहाँ से 6 यूनिट्स दूर है, ये 6 यूनिट्स दूर दूसरी तरफ आ जाएगा, यानी कि A का जो इमेज बनना चाहिए, this is going to be 6 minus 6. Right. So let me draw the line. This is going to be the triangle A prime, B prime, C prime. This is the image when line of reflection is x-axis. Right. अच्छा, साथ साथ कुछ चीज़ें नोट करते जाइए. अगर मैं ये चले इसको आखिर में हम यहाँ लिख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक जनरल बिहेवियर देखूँ, इफ़ लेट्स से दिस इज़ 2
thick, right? So let me make it a little small. Let's say if there is a point a comma b, and if it is reflected in x is equals to 0, the answer is minus a comma b, right? अगर आप x एक्सिस में y एक्सिस में जब ये रिफ्लेक्शन हुई थी तो 6,2 माइनस 6,2 बना था, 6,6 माइनस 6,6 बना था, 10,2 माइनस 10,2 बना था. तो हम कह सकते हैं कि इट हैज़ अ पैटर्न कि जब कभी भी हम वाई एक्सिस में किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करेंगे तो ए कॉमा बी विल बिहेव लाइक माइनस ए कॉमा बी, राइट. और अगर एक्स एक्सिस में देखें, एक्स एक्सिस में अगर ये ए कॉमा बी रिफ्लेक्ट होता है तो दिस इज़ गोइंग टू बी ए कॉमा माइनस बी, राइट. सो let's change the situation. Let's put it y is equals to x. y is equals to x. y is equals to x कौन सी लाइन है? Let me draw this line for you. Let me draw this line for you. y is equals to x वो लाइन होती है जिसमें y और x बराबर रहें. For example 0, 0, 1, 1. What happened to this? Hey, please. Draw. Right. Okay. And I'm going to draw the line from here. Let's say 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Something like that. This is the line y is equals to x, right? In this case, this is the line of reflection, right? ये एक line of reflection अगर होती, ठीक है. तो you know कि अब b का जो इमेज बनना चाहिए था, b का इमेज क्या बनना चाहिए था? अब आप b को देखते कि ये परपेंडिकुलरली दो डायगोनल्स दूर है, तो ये दो डायगोनल्स दूर दूसरी तरफ चला जाता, यानी कि ये यहाँ आ जाता. This point b prime is going to be 6, 2,6, right? So b prime is going to be, if let's say b is 6,2 under y is equals to x, the image is going to be 2,6, right? 6,2 will turn into 2,6. C, likewise 10,2 will become 2,10. This is C prime. And what about A? A will remain invariant क्योंकि ये invariant line के ऊपर मौजूद है. ये A और A prime सेम ही रहेगा, ये अपनी जगह चेंज नहीं करेगा. So if I'm going to draw this out for you, this, and this. So this is going to be the image if the line of reflection is y is equals to x. तो you can understand कि इसमें भी एक पैटर्न मौजूद है कि 6,2 2,6 बन गया, राइट. 6,2 2,6 बन गया, 10,2 2,10 बन गया, और 6,6 जगह चेंज नहीं की. तो इससे आपको समझ में आया कि इनवेरिएंट पॉइंट क्या चीज़ होती है. इनवेरिएंट पॉइंट ये चीज़ होती है कि जब अंडर ट्रांसफॉर्मेशन वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह चेंज ना करे, जो ऑब्जेक्ट है अगर वही इमेज हो जाए, सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड इनवेरिएंट पॉइंट, राइट. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि इसमें भी अगर a कॉमा b रिफ्लेक्ट होता है y इज इक्वल्स टू x में, तो दिस बिकम्स b कॉमा a, राइट. और अगर बात करते हैं y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स की, अब y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स कौन सी लाइन है? लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर. y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स ये लाइन है. लेट मी ड्रॉ दिस फॉर यू. -5, 5, this one. This line -5, 5, yeah.
0, 0. Right. Correct. Now this is the line which we say y is equals to minus x. अगर ये line of reflection है, if this is the line of reflection, right? So अब आप देखो कि ये पॉइंट B कैसे दूर है. पॉइंट B अगर परपेंडिकुलरली देखा जाए तो 1 diagonal, 2 diagonal, 3 diagonal, 4 diagonal. So 1 diagonal, 2 diagonal, 3 diagonal, 4 diagonal. This is going to be the image of B dash, B prime, which is minus 2 comma minus 6. Right? So in the same way, if let's say B is 6 comma 2, so under y is equals to minus x, the image of this is minus 2 comma minus 6. So if you can observe a pattern here, so if a comma b is going to be translated in the line y is equals to minus x, so this is going to be what? b comma a तो ये बनेगा, लेकिन माइनस b comma माइनस a बनेगा. So अगर मैं 10 comma 2 बनाऊं, तो ये माइनस 2 comma माइनस 10 बनेगा, यानी कि यहाँ पर c prime, and 6 comma 6 would be minus 6 comma minus 6, यानी कि यहाँ. Right? So if I'm going to complete the triangle here, so this is going to be the triangle, right? In every type of this transformation, right? You say कि ना size change हुआ ना shape change हुआ, बस orientation ज़रूर change हुई है. कभी upside down हुआ, कभी upside down हुआ है, कभी laterally inverted हुआ है, मतलब जो चीज़ left पे नज़र आ रही थी वो right पे नज़र आ रही है, और जैसे इसमें हुआ है. लेकिन ना एरिया चेंज हुआ, ना साइज चेंज हुआ, ना शेप चेंज हुआ. ये राइट एंगल ट्रायंगल था, राइट एंगल ट्रायंगल ही रहा आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? सो नथिंग इज चेंज. अच्छा, अब यहाँ पे साथ साथ एक चीज़ और समझ लेते हैं. फॉर एग्जांपल आपको ये बात गिवन होती कि भाई ये ट्रायंगल ए बी सी मैप हुआ है ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश. फॉर एग्जांपल दिस ब्लैक ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ कि बी is mapped onto b dash. B is 6 comma 2 and b dash is 2 comma 6, and c is mapped onto c prime, which is let's say 2 comma 10. और आपसे पूछा जाए find the line of reflection, find the equation of line of reflection. अगर सवाल इस तरह से हो तो क्या करते हैं? तो बहुत आसान है. व्हाट वील बी डूइंग, हम b और b प्राइम का हम मिड पॉइंट निकाल लेते. हम मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करते तो ये इसका मिड पॉइंट आ जाता, जो कि क्या होता, 4,4, राइट? इसी तरह से आप c और c प्राइम का मिड पॉइंट निकाल लेते. मिड पॉइंट फार्मूला आप सबको पता है, और वो हो जाता 6,6, राइट? और जब आपको 2 पॉइंट्स मिल जाते, लेट्स से दिस पॉइंट इज n, तो जब आपको 2 पॉइंट मिल जाते तो आप सब ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यकीनन जब तक ये टॉपिक पढ़ा है तो पढ़ ली होगी कि जब आपको 2 पॉइंट मिल जाएं, मिड पॉइंट ऑफ बी डैश, जो कि m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, और वो है 4,4, राइट? और मिड पॉइंट ऑफ सी डैश, जिसको आप n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज 6,6. तब आप ऑफ कोर्स निकालते ग्रेडियंट, जो कि 1 आ जाता. फिर आप निकालते y इंटरसेप्ट, जो कि 0 आ जाता. देन यू अप्लाई y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, यानी कि y इज इक्वल्स टू x. दिस इज गोइंग टू बी द इक्वेशन, राइट? आई होप कि सबको पता होगा कि हाउ टू फाइंड द इक्वेशन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, राइट?
तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन। अच्छा, इसी तरह से अगर एक पॉइंट है ए बी 6,2, ये तो वो बेसिक 4 टाइप्स हैं कि जिनके पैटर्न्स मौजूद हैं और स्टूडेंट्स को याद होने चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है कि जिसके पैटर्न आपको याद ना हो। फॉर एग्जांपल, लाइन अगर x = 12 होती और पॉइंट यही 6,2 आपके पास ऑब्जेक्ट होता, तो इसका इमेज क्या होता? तो आप ये देखते कि x = 12 कौन सी लाइन है? x = 12 वो लाइन है जहाँ पे x हमेशा 12 रहे, और वो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होती है। दिस इज़ द लाइन x = 12, राइट? तो ये 6,2 है। अब आप ये देखोगे कि ये यहाँ से कितना दूर है, बी पॉइंट। ये अगर ऑब्जेक्ट है, ये इस वक्त यहाँ से कितना दूर है? ये यहाँ से 6 यूनिट दूर है। तो ये परपेंडिकुलरली 12 से 6 यूनिट आगे चला जाएगा, यानी कि 18 पे चला जाएगा। सो b dash is going to be 18,2. This is going to be the image, right? सो ये हो गया रिफ्लेक्शन। अच्छा जी, फिर रिफ्लेक्शन में, अच्छा ये हम काम कर चुके हैं कि हाउ टू फाइंड द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट? सो अब आप देखें सक्सेसिव ट्रांसफॉर्मेशन। सक्सेसिव ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? सक्सेसिव ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद एक और ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म हो जाए। फॉर एग्जांपल, ए एक पॉइंट है 6,6, या मैं कोई और पॉइंट ले लेता हूँ, मे बी बी। यहाँ पे हम इसको हटाकर बी रख देते हैं, राइट? लेट मी यूज द पॉइंट बी, एंड बी हैज़ द कोऑर्डिनेट्स 6,2, राइट? अब यहाँ दो तरह की रिफ्लेक्शंस आपको गिवन है। पहली रिफ्लेक्शन m represents the reflection in the line y is equals to x, और r represents the reflection in the line x is equals to 12, right? तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि जी बताइए इस MRB का फाइनल इमेज क्या होगा, तो इसका मतलब ये है कि आप पहले B पर परफॉर्म करेंगे, यानी कि 6,2 पे पहले परफॉर्म करेंगे R को। R क्या चीज़ थी? रिफ्लेक्शन इन द लाइन x is equals to 12। अब 6,2 को अभी हमने रिफ्लेक्ट किया लाइन x is equals to 12 में, आंसर 18,2 आया था। तो हम इसका आंसर लिखेंगे 18,2, और फिर इस 18,2 पर इस m को परफॉर्म करेंगे जो कि रिफ्लेक्शन इन द लाइन y is equals to x थी, जिसका पैटर्न आपको पता है कि x y की जगह और y x की जगह आ जाता है, यानी कि कुछ यूँ, राइट? अक्सर स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि पहले m परफॉर्म कर देते हैं फिर r। याद रखें, जो b के करीब है r पहले परफॉर्म होगा, m बाद में परफॉर्म होगा, ऐसे। और इसी तरह से अगर r m b है, तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट b 6,2 पे पहले m परफॉर्म करेंगे। m का मतलब रिफ्लेक्शन इन द लाइन y is equals to x, यानी कि 6,2 will become 2,6, right? और फिर ये 2,6 और फिर ये 2,6, यानी कि this 2,6 is going to be reflected in this line x is equals to 12, right? तो ये 2,6 अब आप देखेंगे कि ये कितना दूर है अपनी इन्वेरेंट लाइन से। 2 से 12 जो है वो 10 यूनिट्स दूर है, तो ये 10 यूनिट्स दूसरी तरफ चला जाएगा। अब 12 + 10 is 22, 22,6 would be the final answer। आई होप ये बात समझ आई होगी। तो इम्पॉर्टेंट बात सक्सेसिव ट्रांसफॉर्मेशन की एक ही थी कि अगर इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है तो यू विल परफॉर्म m फर्स्ट, एंड देन जो इमेज आ जाए फिर उस इमेज के बाद आप r परफॉर्म करेंगे। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द फाइनल इमेज, दिस इज़ गोइंग टू बी द फाइनल इमेज। तो अब एक लंबा सांस लीजिए, आपकी रिफ्लेक्शन हो गई पूरी। अच्छा, रिफ्लेक्शन में एक चीज़ और बची है। अगर ऐसा हो कि फाइंड, क्वेश्चन इस तरह से कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इमेज लाइन ऑफ y is equals to 2x + 3 when it is reflected in y axis। तो कुछ ख़ास मसला नहीं है, आपने करना ये है कि इस y is equals to 2x + 3 को ड्रॉ करना है। इसके कोई भी 2 पॉइंट लेने हैं। फॉर एग्जांपल, एक पॉइंट एक दफ़ा आप x0 पुट कर दें, आपको y3 मिल जाएगा। एक दफ़ा x - 2 पुट कर दें
तो 2 मल्टीप्लाई बाय -2 -4, -4 + 3 -1 मिल जाएगा। तो आपको मिल गया एक 0,3 और एक -2, -1। ये आपको 2 पॉइंट मिल गए। अब आप 0,3 को अगर वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये तो अपनी जगह चेंज करेगा नहीं, लेकिन ये जो पॉइंट है ये 2 यूनिट दूर है वाई एक्सिस से, तो ये 2 यूनिट दूसरी तरफ चला जाएगा, इधर पहुंच जाएगा। तो लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर एंड नाउ आई कैन फाइंड आउट द इमेज ऑफ दिस लाइन, जो कि ये है, जिसके 2 पॉइंट्स आपको पता चल गए, 2, -1 एंड 0,3। 0,3 विल रिमेन इनवेरिएंट क्योंकि वो इस वक्त इनवेरिएंट लाइन के ऊपर मौजूद है। सो व्हाट यू गोना डू, यू विल फाइंड आउट द ग्रेडियंट फर्स्ट। जब ये 0,3 और 2, -6 आपको 2 पॉइंट्स मिल गए अपनी इमेज लाइन के, तो पहले आप ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लें। y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, यानी कि -9 डिवाइडेड बाय 2। ये ग्रेडियंट आ गया। y इंटरसेप्ट आपके पास 3 है, सो y इज इक्वल्स टू mx + c। दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू -9/2 x + c, यानी कि 3। यू कैन टेक एलसीएम एंड सिंप्लीफाई दिस आउट, राइट? ओके, तो अब एक लंबा सा सांस लीजिए। अब हम थोड़ा सा ट्रिकी काम करने वाले हैं, जो कि है रोटेशन, राइट? अच्छा, रोटेशन में हम एक ऐसे टेक्निक देखेंगे ऐसी टेक्निक देखेंगे कि जिसमें आप लोगों को रोटेट करना बहुत आसान लगेगा, राइट? सो कैसे रोटेशन में, अगर मैं आपसे सिंपल एक बात कहूँ कि आपके सामने एक ये क्लॉक बनाई है मैंने, आप जानते हैं कि क्लॉकवाइज ये रोटेशन है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो हैंड इस वक्त नज़र आ रहा है आपको, जो 12 पे पॉइंट कर रहा है, इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दें, तो आपके जहन में क्या आएगा कि किधर रोटेट होगा? ये बेसिकली 3 पे इंडिकेट करेगा, राइट? लेकिन अब इसमें कुछ बातें थी नोट करने वाली, कि जब भी रोटेशन होती है तो वो अबाउट अ सर्टेन पॉइंट होती है, यानी कि यहाँ पे ये इस वक्त ये पॉइंट है जो फिक्स है। दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ रोटेशन। दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ रोटेशन, राइट? और ये 90 डिग्री मूव हुआ है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हुआ है, सो दिस इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ रोटेशन, राइट? अब इसी कॉन्सेप्ट को हम ग्राफ पर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इधर देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक पॉइंट है ए 0,4 लाइक दिस, और आपने 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है, जबकि सेंटर ऑफ रोटेशन आपको बताया जाए 0,0। सो व्हाट इज़ गोइंग टू बी द इमेज? अब आप ये देखें, जिस तरह से ये क्लॉक मूव हुई थी, लेट्स से दिस पॉइंट इज़ द सेंटर ऑफ रोटेशन। ओ, अब आप देखोगे जैसे ये हैंड था, अब अगर इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये जो 0,4 है ये कहाँ आ जाना चाहिए? लाइक दिस क्लॉक 4,0 पे आ जाना चाहिए, राइट? सो दिस a prime is going to be 0,4, 4,0, ठीक है? सो वी हैव द इमेज कि ये 0,4 रोटेट होने के बाद a प्राइम 4,0 हो गया, राइट? इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि यही ए पॉइंट है, इसको 180 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर दें। मैं आपसे कहूँ कि पहले ज़रा ये घड़ी, ये जो रेड कलर से हैंड बनाया हुआ है क्लॉक पे, यू आर गोइंग टू रोटेट दिस 180 डिग्री क्लॉकवाइज। यस, यू आर गोइंग टू रोटेट दिस 180 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये कहाँ पॉइंट करेगी? ये पॉइंट करेगी 6 पर, ऑफ कोर्स। तो यू हैव द आइडिया कि ये 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होके 6 पर आएगी। इन द सेम वे अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पॉइंट ए को 180 डिग्री रोटेट कर दें, तो ये पॉइंट कहाँ पे आना चाहिए? ये पॉइंट आ जाना चाहिए 0,-4 पर, राइट? ये पॉइंट आ जाना चाहिए 0,-4 पर। दिस इज गोइंग टू बी 180 डिग्री रोटेशन क्लॉकवाइज। अच्छा, अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तब भी ये यहीं आता,
सही है, क्योंकि अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज यू मूव करता इसको तो 180 डिग्री, तो भी इसने 6 पे पॉइंट करना था। तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज कहा जाए या 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कहा जाए, इन दोनों बातों का मतलब सेम है कि दोनों दफ़ा जो इमेज बनने वाला है वो 0, -4 ही बनने वाला है। राइट। सो इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि इस हैंड को 270 डिग्री रोटेट करें तो वो 9 पर आ जाएगी। अगर मैं कहूँ उसको 270 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करें तो ये 9 पे आ जाएगी। इन सेम वे अगर मैं आपसे कहूँ कि यही पॉइंट है 0, 4, इसको 270 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करें अबाउट ओरिजिन, तो यू हैव द आइडिया कि इसको अगर 270 डिग्री रोटेट करूँ तो इस पॉइंट को आ जाना चाहिए था यहाँ पर। राइट, सो दिस इज गोइंग टू बी ए प्राइम -4, 0। अगर मैं इसको 270 डिग्री रोटेट करूं अबाउट ओरिजिन, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसको मैंने 270 डिग्री रोटेट किया अबाउट ओरिजिन, तो ये 9 पर आया, तो ये इस पर आ जाना चाहिए। सो दिस इज गोइंग टू बी -4, 0। राइट, ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यार ये जो मिनट हैंड था इसको मैं ज़रा डिफरेंट कलर से इसके ऊपर एक और चीज़ पेस्ट कर दूँ, ये जो ब्लू लाइन मैंने इसकी टिप पर पेस्ट की है, अब अगर मैं इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करता तो ये जो ब्लू लाइन राइट पे मार्क कर रही है 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होने के बाद ये कहाँ मार्क करती? ये यकीनन 4 पे, यानी कि जो राइट साइड पे मार्क कर रहा है वो अब डाउनवर्ड मार्क करेगा। अब इसी तरह से इस पॉइंट बी को देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पॉइंट बी को रोटेट करें, यहाँ पे मैंने लिखा कि पॉइंट बी को रोटेट करें 90 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट ओरिजिन, तो अब इस बी का इमेज क्या बनेगा ज़रा फिगर आउट करते हैं। बी को देखो कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन ये 4 यूनिट ऊपर है और 5 यूनिट टू द राइट है। अब इस एग्जाम्पल को ज़रा वापस यहाँ पे देखो, इफ़ समथिंग इज़ 4 यूनिट अप एंड 5 यूनिट राइट, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव होने के बाद ये 4 यूनिट राइट और 5 यूनिट डाउन होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 4 यूनिट राइट और यहाँ से 5 यूनिट डाउन आऊँगा तो मैं कहाँ पहुँचूँगा? तो मैं पहुँचूँगा 4, -5 पर। लेकिन ये 0, 4 नहीं था, ये 0, अच्छा 4 यूनिट अप नहीं था, 4 यूनिट अप था, 4 and 5, यस। गड़बड़ की हमने? नहीं जी, हमने गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं की। तो दिस इज गोइंग टू बी 4, -5। राइट, सो अगर मैं कहूँ कि भाई लाइन ए भी 90 डिग्री रोटेट हुई तो ये लाइन ए भी यहाँ आ गई। राइट, सो दिस इज पी प्राइम, दिस इज ए प्राइम। इसी तरह से सी की बात करूँ, मैं इसको रब करता हूँ, इसी तरह मैं सी की बात करूँ कि सी को भी अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो अपने ओरिजिन से ये ऊपर है 8 यूनिट्स एंड टू द राइट ये है 5 यूनिट्स। तो इसको इस दोबारा घड़ी से ऑब्जर्व करें कि अगर इस घड़ी में ऐसा होता कि कोई चीज़ 8 यूनिट ऊपर और 5 यूनिट राइट पे होती तो इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन के बाद 8 यूनिट राइट और 5 यूनिट्स
डाउन आ जाना चाहिए था। तो 8 यूनिट राइट और 5 यूनिट्स डाउन, ये पॉइंट आ जाता है इधर, 8 टू द राइट एंड 5 यूनिट्स डाउन, ये आ जाता है यहाँ पे। अगर मैं इस ट्राइंगल को कंप्लीट करूँ ABC, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये ट्राइंगल 90 डिग्री रोटेट होने के बाद क्लॉकवाइज यहाँ आया। आई होप कि ये बात समझ आई होगी। अब इस टेक्निक को याद रखिए और इस घड़ी को भी याद रखिए कि अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो अपने सेंटर से कुछ यूनिट ऊपर और कुछ यूनिट राइट पर है, तो वो असल में कुछ यूनिट राइट और कुछ यूनिट डाउन आ जाएगा, राइट। इस घड़ी को ध्यान में रखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, अब इसी चीज़ को आपने 90 डिग्री क्लॉकवाइज 0,0 को रोटेट किया था, तो B-4,-5 आ गया था, राइट। अब इस B की बात करते हैं, अगर इसको 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करें अबाउट ओरिजिन, इस B को, अब आप देखो, अगर इस हैंड को मैं 180 डिग्री रोटेट करता, तो जो चीज़ इस वक्त 8 यूनिट ऊपर और 5 यूनिट राइट पर है, ये 8 यूनिट डाउन और 5 यूनिट लेफ्ट पे नज़र आएगी। सोचें ना ज़रा कि अगर मैं इस हैंड को 180 डिग्री रोटेट कर देता, 180 डिग्री रोटेट कर देता, तो जो चीज़ राइट पे मार्क हो रही है वो असल में अब लेफ़्ट पे मार्क होगी, राइट। फॉर एग्जांपल, ये 8 यूनिट ऊपर और 5 यूनिट राइट है, तो ये 8 यूनिट ऊपर और 5 यूनिट लेफ़्ट चला जाएगा। लेकिन एनीवे मैं फ़िलहाल B को वो कर रहा हूँ, तो अगर मैं B को ऑब्ज़र्व करूँ तो B यहाँ से B अपने सेंटर से कितना ऊपर था? B अपने सेंटर से 4 यूनिट ऊपर था और 5 यूनिट राइट पे था। तो इसका मतलब 180 डिग्री घूमने के बाद ये 4 यूनिट नीचे और 5 यूनिट राइट पे चला जाएगा। तो 4 यूनिट नीचे और 5 यूनिट राइट पे लेफ़्ट पे चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि B प्राइम 180 डिग्री रोटेट होने के बाद अबाउट ओरिजिन कुछ ऐसा नज़र आएगा, राइट। इसी तरह से अगर C की बात करूं तो ये C 8 यूनिट ऊपर और 5 यूनिट्स राइट, तो ये 8 यूनिट नीचे और 5 यूनिट्स लेफ्ट पे आएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी C डैश। सो इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस आउट, लेट मी यूज द डिफरेंट कलर। This is going to be the triangle when rotated 180 degree about origin. और इसी तरह से अगर मैं बात करता 270 डिग्री की, तो जो चीज़ राइट पे, अगर मैं इसको 270 डिग्री रोटेट करता, तो जो चीज़ राइट पर है वो इस तरह से नज़र आती। यानी कि B को देखा जाए तो ये 4 यूनिट ऊपर, B को देखा जाए तो ये 4 यूनिट ऊपर और 5 यूनिट राइट पर है, तो ये 4 यूनिट लेफ़्ट और 5 यूनिट ऊपर चला जाना चाहिए। तो 4 यूनिट लेफ़्ट एंड 5 यूनिट ऊपर चला जाएगा, तो ये कहाँ पहुँचेगा? ये यहाँ पहुँचेगा, राइट। Right, so this is going to be B dash. Let me use another color. This is going to be B prime -4 comma 5, right? और C के लिए 8 यूनिट ऊपर है, 8 यूनिट ऊपर है और 5 यूनिट राइट पर है, तो ये 8 यूनिट लेफ़्ट पे और 5 यूनिट ऊपर हो जाना चाहिए। तो 8 यूनिट लेफ़्ट पे और 5 यूनिट ऊपर, यानी कि यहाँ आ जाना चाहिए। तो इफ़ आई एम गोइंग टू कंप्लीट द ट्रायंगल, this and this. Clear? So you can now see
यू कैन नाउ सी कि जी ये रिफ्लेक्शन कैसे हुई, ये रोटेशन कैसे हुई. आई एम रियली सॉरी. सो you can take a screenshot or make the notes accordingly if you want to. ठीक हो गया. सो आई होप कि आपको कहानी समझ आ गई होगी. अब यहाँ पे देखो एक चीज़ साथ साथ ऑब्जर्व करते चले कि अगर इसी तरह से अगर कोई चीज़ लेफ़्ट पे मार्क होती और मैं इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करता, तो जो चीज़ लेफ़्ट पे मार्क हो रही है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होने के बाद ऊपर की तरफ मार्क करती और 180 डिग्री रोटेशन में राइट पे मार्क करती और 270 डिग्री रोटेशन पर नीचे की तरफ मार्क करती. राइट. तो कुछ इस तरह का मामला हो जाता. सो आप लोग बाकी की रोटेशन खुद से समझ सकते हैं. अच्छा, मैं आपको एक चीज़ समझाता चलूँ साथ साथ. हम को अगर सवाल ये गिवन हो, हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ रोटेशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन व्हेन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज गिवन, तो इसका एक प्रोटोकॉल है. वो प्रोटोकॉल क्या है वो बताता हूँ आपको. वो प्रोटोकॉल ये है कि आपके सामने, बल्कि लेट मी यूज़ द ग्रीन कलर, आपके सामने आपने करना क्या है, यू नीड टू डेवलप द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है जिसका इमेज ये ए डैश है. आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डेवलप करना है इस ए डैश का. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आई होप कि आपको डेवलप करना आता है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे डेवलप होता है कि आप कंपास में पहले ए को सेंटर बनाएं और इसको एक्सपेंड करते जाएं. मोर देन हाफ के बाद जैसे फॉर एग्जांपल ये हाफ है, ये हाफ है, मिड है, तो हाफ से ज़्यादा आपने पर कंपास को एक्सपेंड करना है और आर्क लगाना है, एक इस तरफ एक इस तरफ, और फिर आपने ए को सेंटर बनाकर इस आर्क को इंटरसेक्ट करना है, एक इस तरफ एक इस तरफ. राइट. और फिर आपने स्केल रखकर एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है जो इन दोनों आर्क्स के दरमियान से गुजरे. राइट. यानी कि ये जो आर्क बना था कोई बहुत अच्छा नहीं बना. फॉर एग्जांपल ये ऐसे, और फिर आपने लाइन बनाई कुछ ऐसे. ये आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डेवलप किया. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए डैश. राइट. सो सेंटर ऑफ रोटेशन पर निकालने के लिए यू कंस्ट्रक्ट, पहला काम ये है कि यू कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए डैश. इसी तरह से आप किसी और पॉइंट का भी डेवलप कर लें. फॉर एग्जांपल अब आप बी डैश का यूज़ कर लें कि ये जो बी है, बी, इसको थोड़ा सा हम थिन करें. बी और बी डैश ये लाइन है. राइट. अब इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डेवलप करें, बिल्कुल ऐसे कि आपने एक दफ़ा इसको सेंटर बनाकर मोर देन हाफ अपने कंपास को एक्सपेंड किया और एक आर्क ऐसे लगाई, एक आर्क ऐसे लगाई, और उसी मेजरमेंट को चेंज किए बगैर एक दफ़ा आपने बी को सेंटर बनाया और इस पुराने आर्क को इंटरसेक्ट किया, और फिर आपने स्केल लेकर एक स्ट्रेट लाइन बनाई कुछ ऐसे. ठीक हो गया. ये आपने बनाई, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड, दिस लाइन इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी डैश. राइट. सो फिर आपने डेवलप किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर, यहाँ पे लिख दूँ कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था. सो परपेंडिकुलर
bisector of B dash. So finally इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सेंटर ऑफ रोटेशन है। जैसे कि ये पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज सेंटर ऑफ रोटेशन। दिस इज सेंटर ऑफ रोटेशन। अच्छा, फिर एंगल ऑफ रोटेशन कैसे निकालेंगे? यानी कि कोई भी आपने दो पॉइंट्स लिए, दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स डेवलप किए, वो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वो सेंटर ऑफ रोटेशन हो जाएगा। एंगल ऑफ रोटेशन कैसे निकालेंगे? एंगल ऑफ रोटेशन निकालने का काम बड़ा आसान है कि आप ज्वाइन करें इस सेंटर से, ज्वाइन करें इस सेंटर से इस लाइन को, और फिर इसी पॉइंट के इमेज से आप ज्वाइन करें इसको और फिर आप इधर डी रखकर चेक कर लें कि ये एंगल क्या बन रहा है। तो यू विल फाइंड आउट कि ये बेसिकली 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन है, राइट? सो दिस इज अ 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रोटेशन, राइट? तो ये घड़ी याद रखें और ये प्रोसीजर याद रखें। ठीक हो गया? अच्छा जी, द वीडियो इज गोइंग टू बी लेंदी, तो एक काम करते हैं, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, बल्कि एक काम करते हैं, ट्रांसलेशन इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में।